اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے چند انبیاء کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے بھی اپنی قوم کو اللہ پاک کے دین کی دعوت دی ہے۔ کسی قوم نے بھی پھولوں سے استقبال نہیں کیا، آگے سے الٹا ہی جواب ملا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جتنے بھی رسول دنیا میں آئے ہیں ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا ہی ہے۔ اور یہ بات تو آپ کو ورقہ بن نوفل نے بھی بتا دی تھی جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئی ورقہ بن نوفل کے پاس جو تورات اور انجیل کا عالم تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار کا سارا قصہ سنایا کہ ادھر میرے پاس آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ پڑھو، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں، انہوں نے مجھے پکڑا دبایا، ساری بات سنائی۔ تو ورقہ بن نوفل نے ٹھنڈا سانس لیا، اس نے کہا ہے کاش یا لیتنی جزا، میں اس وقت نوجوان ہوتا، کاش اتنی دیر اللہ رب العزت مجھے زندہ رکھے جس وقت آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ ھذا الناموس الذی، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اللہ اپنے رسولوں پہ بھیجتا ہے، کاش اس وقت تک میں جیتا رہا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب کا اظہار کیا، آپ نے فرمایا اوا مخرجیہم، کیا یہ قوم مجھے نکال دے گی جو اپنے فیصلے مجھ سے کرواتے، جو مجھے صادق و امین بولتے ہیں، جو اتنی میری عزت کرنے والے ہیں، یہ مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا تھا جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں یہ جو بھی لایا ہے اس کو نکالا گیا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قصہ بیان کیا ہے۔ 950 سال تک واز چلتا رہا، ماریں چلتی رہیں، دن کو بھی سمجھاتے، رات کو بھی ایک ایک کے گھر پہ جا کے ان کو واز کرتے، لیکن وہ آگے سے دوسرا سلوک ہی کرتے تھے۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے 950 سال کے بعد اللہ رب العزت سے بد دعا کر دی کہ اللہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جیسے جیسے ان کو میں نے دعوت دی ہے ان میں نفرت ہی زیادہ ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ کشتی تیار کریں۔ تو نوح علیہ السلام وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، کشتی آپ تیار کریں، ان ظالموں کے بارے میں پھر آپ نے سفارش نہیں کرنی، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہ سارے لوگ غرق ہو جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، تو وہ کشتی تیار کر رہے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب بھی ان کے پاس سے ان کی قوم کے سردار گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کشتی کہاں چلائے گا، جہاں پانی نہیں ہے، کشتی دریاؤں میں چلتی ہے، اور یہ خشک ریتلے علاقے میں کشتی چلانے کے پروگراموں میں وہ مذاق کر رہے تھے۔ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، تم جس طرح ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو ایک وقت ایسا آئے گا ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، جلدی ہی تم جان لو گے۔ کشتی تیار ہو گئی، اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا، زمین نے پانی نکالنا شروع کر دیا، آسمان سے بھی پانی برسنا شروع کر دیا۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، اللہ رب العزت نے کہا سوار ہو جاؤ اس پہ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے۔ اِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ دعا پڑھی اور نوح علیہ السلام کو ماننے والے اور ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی پہ سوار کر لیا۔
वही तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल, पहाड़ की तरह मजबूत होकर कश्ती पानी में चलने लगी। वनादा नूह इब्नहु, नूह अलैहिस्सलाम ने सामने देखा तो उनका बेटा खड़ा है, जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की मानी नहीं थी। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को आवाज़ दी, वकान फी माजिलिन या बुनय्या इरकब माना वला तकुम मल काफिरीन, ऐ मेरे प्यारे बेटे आओ हमारे साथ सवार हो जाओ और काफरों में से ना हो जाओ। बेटा आगे से नाफरमान था, जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाता वो गैरों के सहारे ही तलाश करता रहता है। उसने कहा काल सहाबी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, क्या अन करीब मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, पहाड़ मुझे पानी से बचा लेगा। ये पानी कहां तक आएगा, पहाड़ तक तो नहीं पहुंच सकता। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा काल ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मर रहीम, है बेटे नहीं, आज अल्लाह के हुक्म से कोई भी किसी को बचा नहीं सकता सिवाय उस पे जिस पे अल्लाह रहम करेगा। बाप बेटे को समझा रहा है, बेटे की बात समझ में ना आई। वहाल बैनहुमल मौजू फकान मिनल मुग़रक़ीन, दोनों में बातें अभी जारी थी, एक मौज आई वो बेटे को बहा कर ले गई। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक ऐसी बेपरवाह ज़ात है जिस ज़ात को किसी की मोहब्बत मजबूर भी नहीं कर सकती। ये नूह अलैहिस्सलाम कौन है, जिन्होंने 950 साल अल्लाह के दीन का काम किया है, लेकिन अपने बेटे को नहीं बचा सके अल्लाह के फैसले से। वनादा नूह रब्बहु फकाल रब्बी इन्न बनी मिन अहली व इन्न वादकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। तो नूह अलैहिस्सलाम अपने रब के आगे रोने लगे, आवाज देने लगे, रब्बी ऐ मेरे रब, इन्न बनी मिन अहली, बेशक मेरा बेटा मेरे आहल में से है, तेरा वादा है सच्चा, तू अहकमुल हाकिमीन है, तूने वादा किया था तेरे अहल को बचा लूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा या नूह, ऐ नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरे अहल में से नहीं है, बेटा तेरा है लेकिन तेरे अहल में से नहीं। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, क्योंकि इसके काम अच्छे नहीं। फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म, बस आप मुझसे सवाल ना करें जिसका आपके पास इल्म नहीं है। इन्नी आइज़ुका अन तकून मिनल जाहिलीन, मैं तुझे वाज कर रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कि आप जहलों में शामिल हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसी डांट नाज़िल की है। काल रब्बी इन्नी आऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म, फौरन ही नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की तरफ रुजू करने लगे, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ कि मैं तुझसे ऐसा सवाल करूँ जिसका मेरे पास इल्म नहीं है। व इल्ला तगफिरली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन, अगर तूने मुझे माफ़ न किया, रहम न किया तो मैं खसारा पाने वालों में से हो जाऊं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इधर अपनी बेपरवाही का जिक्र किया है कि सारे पैगंबर भी अल्लाह के दर के मोहताज हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेपरवाह ज़ात है। तिलका मिन अंबाइल गैब, अल्लाह कहता है ये गैब की खबरें हैं, नूहिहा इलैका, हम वही कर रहे हैं ये गैब की खबरें आपकी तरफ। मा कुंत तअलमुहा अंत वला कौमुका, नहीं जानते थे आप इन खबरों को, आप और ना ही आपकी कौम, मिन कबली हाजा, इस कुरान पाक के नजूल से पहले। अब कितनी वाज़ेह बात है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा एक गैब है। अल्लाह कहता है ये गैब की खबरें हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं, और ये गैब की खबरें ना पहले आप जानते थे ना आपकी कौम जानती थी, वही के जरिए आपको ये सारी खबरें बताई जा रही हैं। इसी तरह फिर हूद, सूरह हूद के बाद सूरह यूसुफ शुरू हो रही है। उसमें से सिर्फ एक बात ही अर्ज करनी है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेल में चले गए तो जेल में दो इनके जेल के साथी थे, उनको ख्वाब आया। उन्होंने वो ख्वाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बयान किया, कहा आप बड़े अच्छे हमें मालूम होते हैं तो हमें इस ख्वाब की आप ताबीर सुनाएं। एक कहने लगा इन्नी अरानी आसिरु खमरा, कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं शराब नचोड़ रहा हूँ, शराब बना रहा हूँ। दूसरे ने कहा मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं अपने सर के ऊपर रोटियों का एक टोकरा रखे हुए है,
ताकुलु तैरु मिन, उससे परिंदे वो रोटियां नोच नोच के खा रहे हैं। नब्बी ना भी तावीली, इसकी हमें ताबीर सिखाओ। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में हैं, जेल के साथियों ने ख्वाब बयान किया है, ताबीर पूछ रहे हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा काल ला यातीकुमा तआमुन तुरज़क़ानिही इल्ला मन नब्बअतुकुमा बितावीली क़ब्ल अन यातियकुमा, खाना आने से पहले मैं तुम्हें इन ख्वाब की ताबीर बयान कर दूंगा। ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ये ताबीर का इल्म मेरे रब ने मुझे सिखाया है। अब खाने तक की मोहलत क्यों मांगी है? इसलिए मांगी है कि मौका मिल गया है तो अल्लाह के दीन की दावत दे ले। पहले उनको अल्लाह के दीन की दावत दी है, फिर ताबीर बयान की है। यह है जो एक दाई होता है, ये जो मेरी और आपकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर तरबियत की है। हमें यह समझाया जा रहा है कि एक दाई को जब भी मौका मिलता है वो अपने मौके को गनीमत जानते हुए अल्लाह के दीन की दावत की बात करता है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे थोड़ी सी मोहलत मांगी है और फिर उन्हें दीन की दावत दी है। इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाहि व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून, ये नहीं कहा कि अब खाने के बाद ही वो तो तबीर मैंने तुम्हें बतानी है, चलो गपशप लगा लें। हाँ भाई, तुम्हारा कारोबार कैसा है, क्या काम करते हो, तुम्हारे वालिद साहब क्या कर रहे हैं, तुम्हारी औलाद है, शादी हुई है नहीं हुई, बच्चे कितने हैं, बच्चियां कितनी हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दाई को इन बातों से कोई सरोकार नहीं होता, वो अल्लाह के दीन की बात करते हैं। आते ही उन्होंने दावत का काम किया। इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाह, ऐ मेरे जेल के साथियों, मैं उन लोगों के दीन को छोड़ चुका हूं, ला युमिनून बिल्लाही, जो अल्लाह को मानते ही नहीं, वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून, और वो आखिरत के बिल्कुल इनकार करने वाले हैं। वो ये कहते हैं बस ये जहान मीठा और अगला किसने डिठा, ये जिंदगी है, ये गुजार लो, मर खप जाएंगे, बाद में कौन सा हिसाब किताब है, कोई हिसाब किताब नहीं। वत्तबातु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब, इन लोगों के दीन को तो मैं छोड़ चुका हूं, लेकिन मैंने पैरवी की है अपने बड़ों के दीन की। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पैगंबर हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम है, यकूब अलैहिस्सलाम है। मा काना लना अन नुशरिका बिल्लाहि मिन शै, हमारे लायक नहीं है कि हम अल्लाह के साथ शिरक करें, शिरक हमारे लायक नहीं है। ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, ये अल्लाह पाक का हम पे फजल है, वालन्नासी, और लोगों पर, वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यशकुरून, लेकिन लोगों की अक्सरियत वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। या साहिबई सिजनी अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन वाहिदुल कहार, ओ मेरे जेल के साथियों, तुम मुझे बताओ बहुत से रब जुदा जुदा वो ज्यादा बेहतर हैं या एक ही अल्लाह जो एक है और हर एक पे गालिब है, कुव्वतों वाला है, ताकतों वाला है, उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं। उस एक रब की इबादत करना यह ज्यादा बेहतर है या कईयों की इबादत करना बेहतर है। मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्मान सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, जिनकी भी तुम अल्लाह के सिवा इबादत कर रहे हो ये सिर्फ नाम ही है, बुतों के नाम बने हुए हैं, वो तुमने रखे, तुम्हारे आबा व अजदाद ने रखे, अल्लाह पाक ने इसकी कोई दलील नाज़िल नहीं की। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, दुनिया में फैसला सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चलता है। अमरा अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्या, अल्लाह का फैसला यही है कि तुम बंदे अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही सीधा दीन है। वलाकिन्न अक्सरन्नासी ला यालमून, लेकिन लोगों की अक्सरियत वो नहीं जानते। अब ये देख लें, अंबिया को जब भी मौका मिलता है वो अल्लाह के दीन की तौहीद की दावत देते हैं। हमें भी जब भी मौका मिले, दोस्त अहबाब साथी रिश्तेदार दावत की है, दोस्त रिश्तेदार इकट्ठे हैं, उनमें दीन की बात करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।